ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ایمان رمضان کو دیکھ رہے ہیں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے عائشہ خان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سلیم؟ اللہ کا شکر، دعا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ خان اور آپ کا ہمارا ساتھ ہے فرسٹ رمضان سے لے کے انشاءاللہ آخری رمضان تک، اور رمضان بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، روزے بہت تیزی سے، اور ان کے جانے کا سب کو ملال اور غم بھی ہوتا ہے۔ تو بات کریں گے آج کے موضوع کے حوالے سے، ہمارے بہت سارے معزز مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعارف سلیم آپ سے تھوڑی دیر میں کروائیں گے، جن میں تمغہ امتیاز بھی جو ہے وہ ایک معزز مہمان کو حاصل ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ احساس، معاشرے میں احساس بالکل ختم ہو چکا ہے، دوسروں کا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو بانٹ کے جو بہت غریب ہیں ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ احساس کے تحت ان کی مدد کی جائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو ہم بالکل خیال نہیں کرتے اور اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں، اور آج کل کی اولاد کو بھی بالکل والدین کا خیال نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاشرے میں برائیاں ہیں جو جنم لے رہی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھے انسان بھی اسی معاشرے میں ہیں جو کہ ان برائیوں کو ختم کرنے میں انیشیٹو لیتے ہیں، اور انہی سے ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ جی سلیم، آپ تعارف جی کرائیں بہت گے۔ شکریہ عائشہ آپ کا۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے عائشہ نے کہا کہ احساس، واقعی احساس اگر انسان کے اندر ہو تو وہ دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے، اور خدمت کے حوالے سے وہ بہت آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان ہونے کا شرف دیا اور پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اتنا بڑا شرف ہے ہمیں، اور اس کے اندر ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے تو یقیناً جو ہے ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان سب کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ خدمت کے جذبے سے سرشار آج کی جو شخصیات میرے ساتھ تشریف فرما ہے کہ وہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کام کریے، اگر وہ آپ جب سنیں گے تو آپ بھی اشش کریں گے، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہوتے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائنس پاکستان دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان ہے کیا، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے، پاکستان اتنے نیچے کی طرف آ رہا ہے، لیکن جب ان لوگوں کی طرف نظریں جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، اور جب یہی لوگ آگے آئیں گے اور سب مل کے کام کریں گے تو پاکستان ایک ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بڑے ہی ملنسار ہے اور بڑے خاموش طبیعت آدمی ہے، اور بالکل خاموشی کے ساتھ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے انہیں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا، جو حیثیت، جو نام دیا، وہ قابل دید، قابل ستائش، قابل تعریف ہے۔ ہماری میمن برادری سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ہماری میمن برادری کے لیے ایک اعزاز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے انہیں 2 مرتبہ تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ یہ ہماری برادری کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ رتبہ دیا ہے، اور حکومت پاکستان نے ان کو بھی تمغہ امتیاز سے 2 مرتبہ نوازا ہے۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن جو کہ ایک میمن برادری ہے، اس کے صدر ہیں ہمارے، صفا اکیڈمی ہے ایک ادارہ، اس کے یہ چیئرمین ہیں ہمارے میمن خدمت فورم، جو کہ حاجیوں کی بہت احسن طریقے سے خدمت کرتی ہے۔ جب حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے تو اس کے اہتمام کے لیے یہ لوگ ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بھی چیئرمین ہے۔ ایک آغوش ٹرسٹ ہے جس کے اندر جو عورتیں بوڑھی ہوتی ہے ان کے لیے بہت بڑی خدمت کریں، ان کی زبانی ان سے سنیں گے۔ آپ نے عالمگیر ویلفیئر انٹرنیشنل کا نام سنا ہوگا، ماشاءاللہ اس کے اندر بھی بہت اہم طریقے سے اپنا فرض انجام دے رہے وائس چیئرمین ہیں اس کے۔ زینب ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسپیشل بچوں پہ خصوصی طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اس کے بھی چیئرمین ہیں۔ 2 مرتبہ تمغہ امتیاز حاصل کر چکے، ہمارے لیے فخر ہے۔ حاجی مسعود طارق صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم، بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ کے۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اندر جس وقت پاکستان کے اندر ایسی سچویشن ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کام کریں تو کس طریقے سے کام کریں، اور کتنا سکون اور کتنی میٹھی نیند کے ساتھ آپ لوگ سوتے، یہ ہمارے لیے، ہماری میمن برادری کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میرے دوسرے مہمان اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے جب ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو کہ ہمارا ایک ادارہ جو پوری دنیا کے اندر میمنوں کی خدمت کر رہا ہے، سابق سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں ان کے، اور اس وقت جو ہے انہیں ایڈوائزر پاکستان چیپٹر کے طور پر انہیں اپنے ساتھ لیا گیا ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر نے، جو ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی
یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس لیے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ لوگ کام کرے، بڑی خاموشی سے یہ لوگ کام کرتے اور بالکل بیک میں ہو کر کام کرتے، اپنے آپ کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ کو پسند بھی آتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اربوں لوگوں کے اندر مولا کریم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور سوزوکی مرکلہ موٹرز کے سی او الطاف جانگلہ صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے تیسرے مہمان ہیں جو بالخصوص اسپیشل بچوں کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے، IHRI سے بھی منسلک ہے، اور بہت سارے ہمارے آل پاکستان ویمن فیڈریشن سے منسلک ہے، اور بہت سینئر ساتھی فنانس سیکرٹری رہ چکے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے. اسپیشل بچوں پہ خصوصی کام کرے اور بالخصوص ہیلتھ کے اوپر بھی بہت بڑا کام کرے کہ جو ہیلتھ کارڈ ابھی ہمارے آل پاکستان ویمن فیڈریشن، ورلڈ ویمن دونوں نے جوائن یہ ہیلتھ کارڈ بنایا، اس کے اوپر بھی بڑا کام کرے. شعیب غازیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ان کی زبانی سنیں گے کون کون سے کام اس وقت پائپ لائن میں اور کون کون سے کام اس وقت جاری ہے. شعیب غازیانی صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. میرے ایک اور صنعکار جسے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، ان کے والد صاحب جو ہے بہت بڑے ماشاءاللہ ثنا خواں تھے اور اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز سے نوازا، اور پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کراچی کی جتنی بڑی محفلیں ہوتی ہیں ان میں آپ ان کو اکثر دیکھتے. طاہر ہاشمی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سلیم، اس کے ساتھ میں تعارف کراؤں گی ہماری رمشا کا. رمشا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں. کیسی ہیں؟ السلام علیکم. کیسی ہیں رمشا آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آج بتائیں کون سے مزیدار آج کھانا میں کھلائیں گی؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن چنگیزی، اور چونکہ عید کے دن قریب ہیں تو اس کے ساتھ میں بناؤں گی میٹھی سویاں. چنگیزی مطلب غصہ بھی ہوگا اس میں؟ نہیں، چکن انڈین ڈش ہے نا، اچھا تھوڑی جو دیر میں بون لیس چکن سے تیار کی جاتی ہے. بون لیس چکن. جی تھوڑی دیر میں آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، آپ اسٹارٹ کریں کہ کس طرح سے کریں گے. تھینک یو. ایسا ماحول اسی حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ سبھی لوگ ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ماں جس کی زندہ ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. اور ماں کی محبت کی شان کے حوالے سے میں طاہر ہاشمی صاحب سے کہوں کہ وہ کلام ہو، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. موسیٰ گئے جو طور پر تو اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ اے موسیٰ تم ذرا. ماں کی دعا کے ساتھ، ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر، پیچھے تمہارے اب تو ماں کی نہیں دعا. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے. جلتی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے. جلتی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک اس کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن میں پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے، اس نے تم کو جنم دیا ہے، اس نے تم کو پالا ہے. وقت نہ دیکھا اچھا برا اور پھر بھی تم کو سنبھالا. وقت نہ دیکھا اچھا برا اور پھر بھی تم کو سنبھالا.
दुख झेले हैं कैसे कैसे दिल पे पत्थर रख कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर, माँ तो माँ है, माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना, जग से जुदा हो जाना इशरत, माँ से जुदा ना होना, रब से दुआ है रहे हमेशा माँ का साया सर पर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर, माँ तो माँ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आप। आई साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इतनी सारे ओहदे माशाल्लाह, आगोश। मैं पहले आपकी एक बात कहा, जी जी मेरी बहन ने एक बात की सबसे पहले कि एहसास नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, जिसमें एहसास नहीं है वो जिंदा ही नहीं है। बिल्कुल आप उसको जिंदा क्यों गिनते हो? हकीकत अगर दूसरे इंसान का उसको एहसास ही नहीं है तो वो जिंदा तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप तो ऐसे मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आगोश और क्या कहते हैं ओपलेटा मेमन जमात, अब आपको दोबारा ओपलेटा मेमन जमात की तरफ भी लेके आए कि नहीं अब वो खिदमत, तो मैं कहाँ से आगाज़ करूँ आपका कि ओपलेटा से लेके चलूँ, मेमन खिदमत फॉर्म से लेके चलूँ, आगोश से लेके चलूँ, ज़ैनब से लेके चलूँ, या मेमन खिदमत फॉर्म की तरफ से लेके चलूँ, आलमगीर से लेके चलूँ? माशाल्लाह इतना सारा वो है। तो पहला सवाल ही मैं इसी हवाले से कि इस वक्त जो अभी हमारे जो लोग हाजी जा रहे हैं मेमन खिदमत फॉर्म से आगाज़ कर लेते हैं, तो जो मेमन खिदमत फॉर्म के हवाले से आयशा अब मेरा ख्याल है कि वो सवाल करना चाह रही मैं थी। बिल्कुल ये पूछना चाह रही थी कि मेमन खिदमत फॉर्म के हवाले से मैंने अभी सलीम से मालूम किया कि एयरपोर्ट पे हाजियों के लिए आप कोई खुसूसी इंतजामात करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, तो मैं चाहती हूँ नाज़रीन को मालूम हो कि आप क्या खिदमत अंजाम देते हैं। ये लास्ट 3 ईयर से नहीं हो रहा, कोविड की वजह से और कोविड के बाद। इससे पहले हमने तकरीबन 19 साल कराची एयरपोर्ट पर कैंप लगाया है। असल मसला ये होता है कि कराची वाला हाजी तो आता है, उसके बच्चे उसको छोड़ते हैं, वो अंदर चला जाता है और वो निकल जाते हैं। सही, जो अंदरूनी सिंध से जो हाजी आता है उसका मसला ये है कि एक हाजी जाता है और उसको पूरी बस छोड़ने आती है। अच्छा, वो मिसाल है कि सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है तो वो रात को सफ़र नहीं करते, वो शाम को 6 बजे वहाँ आ जाते हैं हमारे कैंप। हमारे कैंप में इंतज़ाम है लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, सही, बिस्तर भी है, सर्दी का मौसम हो तो लियाफ भी है, तकिया भी है माशाल्लाह। तो वो सो सके। और आलमगीर वेलफेयर की तरफ से इनको खाना भी दिया जाता है, सिर्फ उनको नहीं, हाजी को। जो हाजी को छोड़ने के लिए जितने भी लोग हैं उन सबको डब्बे में पैक किया हुआ खाना तैयार मिलता है, माशाल्लाह। वो सबको दे दिया जाता है। पानी का इंतज़ाम है, क्योंकि ये बेचारे अंदरूनी सिंध से 100 आदमी एक हाजी को छोड़ने जब आते हैं तो ये मिनरल वाटर तो लेके नहीं पी सकते, सवाल ही पैदा नहीं है कि वो अफोर्ड करें। पानी का इंतज़ाम है। और इसी तरह हमने वो लोग जो हमारी बरादरी के हैं, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 12 हज किए हैं, अच्छा, माशाल्लाह। वो आते हैं और इनको तरबियत करते हैं, क्योंकि इनके पास तरबियत की बहुत कमी है। और हर साल हम कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को भी कहते हैं, पर इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने कभी तवज्जो नहीं दी कि जो भी हाजी पाकिस्तान से जाए वो ट्रेनिंग लेके जाए, चाहे वो किसी मस्जिद से ले, किसी मदरसे से ले, किसी भी इदारे से ले, किसी भी मसलक से ले, उसे कम से कम वो इतनी बड़ी सादत नसीब हो रही है, उसे ये तो पता चले कि मैं क्यों जा रहा हूँ, वहाँ क्या करना है। वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हरम के बाहर जो सबसे आखिरी लाइन लगी होती है, वहाँ जाके सबसे पहले बैठ जाते हैं। अच्छा, अंदर जगह खाली है, अंदर रास्ता ही नहीं दे रहे आप आगे जाने का, तो ये तरबियत ज़रूरी है। तो तरबियत है नहीं हमारे पास, इस वजह से बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, एक सवाल और करके फिर उस तरफ बढ़ता हूँ कि ये तरबियत का भी कैंप आप लगाते हैं और माशाल्लाह हाजियों को भी कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ मैं देखता हूँ, मैं खुद भी गया तो देख रहे हम थे 27 आइटम में फी सबीलिल्लाह फ्री देते थे, माशाल्लाह, जिसके अंदर एहराम, चप्पल, बेल्ट, तस्बीह 100 दाने वाली, 33 दाने की, फिर 7 दाने की तवाफ की, पॉकेट साइज कुरान शरीफ, क्योंकि वहाँ कलाम पाक जो होते हैं वो अरबी में होते हैं तो हमारे लोग पढ़ने में मुश्किल होते हैं। इसी तरह आपके किस सामान में होते हैं? नहीं, अरबी में ही होते होंगे, आराम के साथ होते हैं, अच्छा अच्छा वो बगैर आराम के होते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हम लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा सही है, मुश्किल होता है, सही। तो वो चीज़ है।
अच्छा उम्रे की चीज़ है, अच्छा फिर शैतान को कंकरी मारनी है, हमें जमा करनी है, तो वहाँ तो आपके पास, आप इहराम में हो, आप किस में जमा करोगे, तो उसकी थैली, अच्छा यानी हर चीज़ देखी हुई है। तो जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमने और वहाँ मुजफ्फर में वो चीज़ें बड़ी काम आती है जब उसके ऊपर जाते हैं, उस पर गुफ्तगू तो करते हैं। अल्ताफ साहब आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो माशाल्लाह WMO के हवाले से आपको सेक्रेटरी जनरल आपने बहुत सारे काम किए उस हवाले से भी, और अभी भी आपके साथ आपको जोड़ के रखा हुआ उन्होंने, वो इसी वजह से कि काम जो है वो सबसे मेन चीज़ बोलता है। तो ये आँखों के लिए भी आपने बहुत बड़ा काम किया, तो वो क्या काम किया था, ज़रा मेरे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, हमने शुरू किया था अपने वक्त में, शोबा भी हमारे साथ थे और रियाज दीप भी हमारे साथ थे, और इसमें हमारी मदद की थी श्रीलंका के जो WMO चैप्टर है, वो वहाँ से हमें कोरोना भेजते थे और उन्हीं के सारे एक्सपेंसिव वो खुद उठाते थे। अच्छा, और जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना, ऐसे वहाँ आइस की भी बैंक्स होती हैं, तो वहाँ से खरीद के और यहाँ तक हमें पहुँचाते थे और सारा खर्चा वो उठाते थे। अच्छा, फिर यहाँ की हॉस्पिटल का खर्चा हम उठाते थे। अच्छा, तो अब हमने अपने ज़माने में कोई 250 के करीब पेशेंट को ये काम करा के दिया, और वो नाबीन आप सब देख सकते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा आज साहब ये कितना खर्चा आता था उसके ऊपर, अगर हम पाकिस्तानी उसके पैसों के हवाले से देखें? नहीं, उस जमाने में तो वहाँ पे $500 खर्चा आता था कराची पहुँचने तक, जो कि अब $1200 हो गया, तो अब कितनी लागत आ गई? क्योंकि वो एक तो डॉलर का डिफरेंस हो गया है, फिर वो कोविड के बाद कार्गो के एक्सपेंसिव भी बढ़ गए हैं, तो अभी तो ये पोजीशन है। अगर शोबा गलती हो तो बताइएगा कहीं मेरी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो खर्चा आ रहा था ना, वो अंदाजन में कह सकता हूँ 70-75 हज़ार के करीब था, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो टेस्ट कराएं वो हर एक को लग सके। अच्छा, पहले वो टेस्ट होता है, फिर वो डॉक्टर्स बताते थे कि सर्जरी हो सकती है कि नहीं, उसके बाद ये होता था। और हम ये आशवानी हॉस्पिटल में करते थे, आशवानी में और हैं अली इब्राहिम अली इब्राहिम में करते थे। क्या फी सबिलिल्लाह था या पेशेंट्स को फी कुछ ना- सबिलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह ये और इसमें ये भी था कि अगर नॉन मुस्लिम है, अब नॉन मुस्लिम है तो ज़कात नहीं दे सकते हैं, हाँ, तो फिर वो नॉन ज़कात से हम करते थे, सही। इसके लिए बाकायदा अलग फंड क्रिएट किया अलग गया। फंड क्रिएट अच्छा, किया था। अच्छा। और बहुत लोग इसमें तैयार थे कि भाई और पैसे चाहिए तो बताओ, और पैसे बस चाहिए। काम देख के सब आते हैं। अच्छा बस साहब आप ये की तरफ देखें कि अवाम में कब ऐसी बात नहीं है, इंसानियत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से ऐसा बता रहे हैं, और ये सब टीम वर्क का और काम का नतीजा है। माशाल्लाह आप आल पाकिस्तान मेमन फाउंडेशन से बहुत पुराने जुड़े हुए हो, और इस वक्त आप जो हेल्थ बोर्ड को भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो, साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अगर मैं WMO की बात करूं और उसकी बात करूं, तो अभी इस वक्त जो है स्पेशल बच्चे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो चीज़ हाजी साहब कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, वर्ल्ड मेमन भी कर रहे हैं, तो स्पेशल बच्चों पर भी क्या काम हो रहा है? देखिए इत्तेफाक की बात है कि जब हमने स्पेशल बच्चों पर प्रोजेक्ट शुरू किया तो हम 3 ही मौजूद थे स्टार्ट करने वाले। अल्ताफ हबीब, हाजी मसूद पारेख और मैं, और मेरे साथ जारी बात है कासिम लवाई साहब और फारूक बकाली। हम लोगों ने शुरू किया। इस 3 में जब प्रोजेक्ट शुरू करना था तो उस वक्त बात हुई कि क्या करें, तो फैसला किया गया कि एक फेस्टिवल किया जाए, फैमिली फेस्टिवल। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट कौन उठाएगा? तो अल्ताफ भाई और हाजी साहब, हाजी मसूद ने कहा कि आप कॉस्ट की फिक्र नहीं करो, काम करो। अल्ताफ भाई बहुत सारे अल्ताफ भाई जांगरा, हाँ अल्ताफ भाई जांगरा, अल्ताफ भाई जांगरा और हाजी मसूद पारेख, इन दोनों ने कहा आप कॉस्ट की फिक्र नहीं करो, आपका हेडिंग नहीं है, हम संभाल क्या बात है माशाल्लाह। और ये इस प्रोजेक्ट में जो सबसे अहम बात ये हुई कि हमने तकरीबन 350 बच्चों को स्क्रीनिंग किया, तो बहुत से खतरनाक किस्म के नतीजे आए सामने, जिसने हमारे समझे कि होश उड़ा दिया। फिर सब बैठे, बाबा में करना क्या चाहिए। उसके जितने भी अखराजात थे अल्ताफ हबीब जांगरा साहब और हाजी मसूद फारूक ने अपनी पॉकेट से दिए, मतलब किसी और ने नहीं दिए, इन दोनों ही दिए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जब हमने देखा कि बच्चे के मसले आ गए हैं, 2018 मई में हमने किया था, 2018 नवंबर में पाकिस्तान में तीसरा प्रोग्राम हुआ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजिंग कमेटी का, पूरी वर्ल्ड लेवल पर तीसरी बार पाकिस्तान में सब लोग आए। उसमें अल्ताफ हबीब साहब लीड कर रहे थे,
اور میرے ख्याल में अल्ताफ हबीब को उस वक्त एक मुनफरिद ओहदा मिला कि वो एट अ टाइम प्रेसिडेंट एंड रीजनल सेक्रेटरी, रीजनल प्रेसिडेंट, रीजनल सेक्रेटरी थे, और मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके, अच्छा माशाल्लाह, मुमकिन ही नहीं है। ये कुछ हालात ऐसे हो गए थे बहरहाल। तो हम लोग बैठे हैं, तो उस दौरान ये मीटिंग हो रही थी, तो यूएसए चैप्टर के बशीर अकुली साहब आ गए, गपशप कर रहे थे। उन्होंने कहा ये कोई प्रोजेक्ट दो। मैंने स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा हमारे पास WMO में 70 बच्चे हैं, हम उनको एविनेशन करना चाहते हैं। बोला ठीक है, बजट बताओ, हम इस पर काम शुरू करते हैं। तो ये बात हुई नवंबर 18 में, और जनवरी में ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। हमने स्टार्ट किया 70 बच्चों से, और 70 बच्चों के रिजल्ट आए तो हमें आइडिया हुआ, हाजी साहब माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ये भी तस्दीक करेंगे कि बहुत से बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। उमूमन क्या होता है कि हम नॉर्मल MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई माजूर टाइप का बच्चा लेकर, हाथ पांव टेढ़े हैं, या आंखें का मसला है, या दिमागी तौर पर कमजोर हो, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, हाँ ये कह सकते हैं 100% नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक बच्चा है, अगर एक कदम उठा नहीं पा रहा या बैठ नहीं पा रहा, हम उसकी इतनी सलाहियत पैदा कर सकते हैं, बैठ सकता है, वो हल्का फुल्का चल सकता है। और अल्लाह को शुक्र बच्चे चले। हमारे पास बच्चे आए व्हील चेयर के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हमारे पास बच्चे आए बोल नहीं रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। तो ये काम जो एक बुनियादी जो मैसेज है ना मेरा, वो ये है कि अल्लाह तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला ने बच्चे भेजे हैं, अब अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अपनी तरफ से कोशिश करें, हाथ पर छोड़ मत दे। और उमूमन डॉक्टर हजरत के रवैये की वजह से बहुत से बच्चे, पेरेंट बच्चों का इलाज छोड़ देते हैं, जबकि बच्चों का इलाज करके उनको बेहतर किया जा सकता है। अगर कोई सीपी बच्चा है, अगर कोई सीपी बच्चा है, जहनी तौर पर माजूर है, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो एक टाइम ऐसा आता है इसका बॉडी फोल्ड होने लगती है, या हाथ है बत्तख काट बन जाता है। तो इसको कम से कम इन चीजों से रोकना है। इसका पाँव आगे सर पे आ जाता है घूमकर, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं 100%। नहीं तो किस तरह कांटेक्ट करें? मैं ये पूछना चाह रही थी साहब, ज्यादातर जो है किस किस्म की बीमारियां ज्यादा पाकिस्तान में बच्चों में पाई जाती हैं? देखिए जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ऑटिस्टिक ज्यादा है, ऑटिज्म, लेकिन हमारे जो हमने जो देखा है ना जी, जिन गरीब इलाकों में ऑटिज्म नहीं है। अच्छा, कमाल की बात देख रहा हाँ हूं ये मैं। कमाल की बात है। और अमीर इलाकों में ऑटिज्म पाया जाता है, गरीब इलाकों में सीपी ज्यादा पाए जाते हैं बच्चे। और सीपी वो बच्चा होता है जो हमारा अपना गुनाह है। मायने ये है कि सीपी बच्चा या तो माँ के पेट में किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार की वजह से बनता है, माँ को स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोई मेडिसिन है, फैमिली प्रेशर है, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसकी वजह से बच्चों को प्रेशर आता है। दूसरा ड्यूरिंग बर्थ है, तीसरा आफ्टर बर्थ। ये 3 पॉइंट की वजह से सीपी बच्चा बन सकता है। हम 100% सीपी बच्चों को रोक सकते ये हैं। शेब हमारा डॉक्टर नहीं बन गया माशाल्लाह। नहीं, बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट की बात होती नहीं है। देखिए टाइम देना। अब ये जो स्पेशल बच्चों की बात हो रही है ना, मेरी इसी सिस्टम में सबसे पहली आई सबसे मुलाकात स्पेशल बच्चों के ही वजह से हुई। शोएब भाई मेरे पास आए कि स्पेशल बच्चों का काम में WMO में शुरू करना है, और हाजी साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। इन हाजी साहब ने इनको कहा कि अल्ताफ भाई को तुम ज़ैनब पे लेकर आओ, ताकि याद हो ना। फिर मैं हाजी साहब और मैं शोएब भाई, हाजी साहब वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, हम गए। उन्होंने बोला पहले आप देखो इन बच्चों को। यार मैं कह नहीं सकता, इसका कोई अल्फाज नहीं होते कि वो जो माहौल और जो इनके इंतजाम, शायद माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए वो मोहब्बत से काम नहीं करते जो ज़ैनब पे है। टीचर्स को देख लें, इनकी खुद इनकी वाइफ का वहाँ होना, इनकी बेटी भी है, इनकी बेटी बेटी अब तो बेटी करती है। मैं भी कर रही हूँ। तो उस जमाने की बात, मैं तो 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। फिर हमने कहा कि अब हम शुरू करते हैं, तो वो हमें ये गाइडलाइन यहाँ से मिली थी। अच्छा, तो अच्छा मैं खुद ही इन्हीं की ज़बानी सुनता हूँ कि ज़ैनब कहते हैं, ज़ैनब ये ज़ैनब क्या जहन में खाका आया कि ज़ैनब के नाम पे खोला जाए, और क्या ज़ैनब के हवाले से क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें आई कि इसी बच्चों पे फोकस किया जाए? तो सब क्या किसी को देख के आप इस तरफ आए, या क्योंकि अमूमन मैंने लोगों को सुना है कि उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ, फलां के साथ कुछ हुआ, इसके साथ कुछ हुआ, तो उसने वो इदारा खोला। तो आपने क्या देख के इस इदारे को? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है। मैंने जगह ली थी यतीम बच्चों के लिए। अच्छा। जो जलजला आया ना उसके अंदर के मैं यतीम बच्चे रखूंगा, लेकिन यहाँ 3-4 लोग लेके आए बच्चे कि ये हमारे रिश्तेदार है, जलजले में इनके वालिदैन इंतकाल कर गए, आप रख लो। हमने रखा और दूसरे दिन से मुख्तलिफ
लोग आना शुरू हो गए कि ये तो हमारा कज़न था, तुमने कैसे रख लिया, ये तो हमारे भाई का बेटा था, तुमने कैसे रख लिया। और वो सब तैयारी करके आए थे कि झगड़ा हो तो हमने वो बच्चे उनको वापस दिए जिन्होंने भेजे थे। अब वो जगह ली थी तो हमने बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से लिखा। क्या बात है। आगे ना बात वही अल्ताफ भाई, मुंह से वो कहलवाना था आपने, यहाँ नहीं लेकिन उस रब का क्या। ये तो भाई साहब हमेशा अच्छा, कब से खोले? मैं एक सवाल करूं फिर आप 22 साल हो गए। 22 साल से माशाल्लाह। जरा क्या कुछ कहना चाह रही थी ऐशा? मैं कह रही थी कि वो काफी आगे तक निकल गई है, तो रमशा से थोड़ा पूछ ठीक है, लूं ठीक है। कि वो क्या बना रही है। क्या बना रही है? जैसा मैंने बताया कि आज मैं चिकन चंगेजी बना रही हूँ। उसकी जो ये इंडियन डिश है बेसिकली, नाम खसूसी आपने रखा नहीं। या वैसे ही है? नहीं, ये इंडियन डिश है, इसे चंगेजी ही कहते हैं। 1970 में जो जहांगीर खान थे उनको एक ट्रिब्यूट मिला गया था चंगेज के नाम से, तब ये उस जमाने में ये डिश जो है डेवलप हुई थी, जो बोनलेस चिकन में बनाई जाती है। ये दिल्ली इंडिया में डेवलप हुई थी, इंडियन डिश है। और जैसे चंगेजी है ये, तो हर चीज इसमें पेस्ट फॉर्म में यूज की जाती है। ये वाली बात जो चंगेजी वाली, वो थोड़ी मेरे दिमाग में भी चुभ रही है। इंशाल्लाह जब हमारे मुफ्ती साहब बैठेंगे तो उनसे मुझे याद दिलाइएगा कि डिस्कशन करनी है, ताकि अगर कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे तो फिर उसके ऊपर जो ना क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज भी ना आ जाए। क्या ऐसे शेफ जब हम कुछ बनाते हैं तो उस डिश के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। नाम में क्या? ठीक है, आगे चले बताएं। जी, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। जिंजर गार्लिक मैंने फ्राई किया, जैसा मैं हमेशा फ्रेश यूज करती हूँ। देन मैंने बोनलेस चिकन को सॉटे किया। देन मैंने पेस्ट डाला है अनियन का और टोमेटो का। देन इसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला पाउडर, बहुत लिमिटेड मसाले डालते हैं, ये स्पाइसी नहीं होती थी। तो कुटी हुई लाल मिर्च हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज करेंगे, जिससे एक रेड कलर आना चाहिए, तीखा कलर आना चाहिए, लेकिन स्पाइस में इतनी होगी नहीं। ये मैं डाल के अब इसको मैं कुक कर रही हूँ। ऑयल जैसे सेपरेट होगा, गार्निश करूंगी धनिया के साथ, गरम मसाला पाउडर के साथ और कसूरी मेथी के साथ। क्या बराबर में? और यहाँ पे मेरी सवैयाँ बन रही है। मैंने कहा सवैयाँ भी सिखा दो, क्योंकि ईद के दिन करीब है, सब सवैयाँ बनाएंगे। तो यहाँ मैं एक बात बताई चलूँ कि देसी घी में इसको बनाए, वो ज्यादा अच्छी और फ्लेवरफुल बनती है। क्या शुरू किया अभी जल्दी? 2 टेबलस्पून देसी घी डाल के मैंने सवैयों को फ्राई किया है। सवैयाँ फ्राई जरूर करें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पानी ऐड करके पकाएंगे तो उसमें कच्चापन आएगा। फ्राई करके शुगर ऐड की मैंने, देन इलायची पाउडर ऐड किया है। अब मैं हाफ कप पानी डाल के इसको कुक कर रही हूँ। सही। देन आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ वगैरह आप इसकी तैयारी करें। आइशा की तरफ में आता आइशा, जिस तरीके से आपने ज़ैनब के हवाले से 22 साल का कहा, तो इस वक्त ज़ैनब क्या क्या कर रहा है, कितने बच्चे और कौन इसको मेंटेन करके रख रहा है? मेरी साहबजादी ये चला रही है माशाल्लाह। महविस मंसूर, और 160 बच्चे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह अब तो हमारे वो बच्चे जो बड़े हो गए उनको जॉब पर भी लगाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। और अभी बड़ा टब्बा वालों ने हमारे मेरे ख्याल में 6 से 8 बच्चे लिए हैं। मंटो वालों ने 2 बच्चे लिए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो बच्चे बड़े हो गए हैं, और वो मतलब मेहनत का काम नहीं कर सकते, लेकिन बैठ के काम कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री में कपड़ा आ रहा है तो यूँ सिर्फ यूँ करना है, या टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं। एज वाइज कितने हैं? अब तो वो जवान बच्चे हो गए माशाल्लाह, क्योंकि जो 6 साल 8 साल की उम्र में आए थे 22 साल हो गए उसको। तो अभी मजीद भी बच्चे ऐड होते रहते होंगे। जी। अच्छा, सब कुछ कैद तो नहीं है कि ऐसे मेमन के बच्चे या जो भी आना चाहते हैं, या क्या? उसमें मेमन तो मेरे ख्याल में 10% होंगे। अच्छा। और कैद कोई नहीं है। हमारे पास 2 गैर मुस्लिम भी है, हिंदू बच्चियाँ, हमने उनको भी रखा हुआ है, क्योंकि ये तो सबका मसला है ना। क्या बात है। अच्छा आयशा, मैं ये भी बताऊं कि आज साहब को माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने इंट्रो दिया, उसके अंदर एक इदारा आगोश भी है। ये आज साहब आगोश लफ्ज़ ही ऐसा है कि सिमेटना, और ऐसे लोगों को सिमेटना जो क्या कहते हैं, जिस तरह लोग परेशान होते हैं, और ख़ासतौर पे माँ के हवाले से, ये इतना बड़ा अजीम काम है। तो ये काम किस वक्त आपको ध्यान में? सिर्फ लेडीज हैं या जेंट्स? सिर्फ लेडीज है। और ये मैं इनके साथ शामिल हुआ हूँ तकरीबन 3 साल 4 साल हो गए। ये इदारा पहले से चल रहा था, और ये पहले नाज़माबाद में था, अब डिफेंस मूव कर गया है। ठीक है। और मैं आपको उसका समझा इसलिए नहीं सकता कि आप आके देखो। तो ऐसा हमें दावत दो तो हम आपके पास बिल्कुल कैमरे के साथ आएंगे, पूरा प्रोग्राम करें, बिल्कुल करें, ताकि वो लोगों को पता भी चले कि माशरे में क्या क्या नहीं हो रहा है। वहाँ ऐसी ओल्ड लेडी है कि जिनकी हिस्टोरी, हर लेडी की स्टोरी अलग है। और अगर आप एक लेडी पे एक स्टोरी करो तो मेरे ख्याल में आपको 50 स्टोरियाँ तो वहाँ।
बस ऐसे दुख की ऐसे बात की है। है लेडी कि जो मिसाल है कि तारिक रोड पे रहती थी, ओ हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जेठ ने कब्जा कर लिया, निकाल दिया, आज वो इस हाल में है कि वहाँ पड़ी। अच्छा। बहुत दुख तो कितने लोग हैं भाई साहब उसके अंदर? वो तकरीबन उसके अंदर हैं 42 लेडी है। तो उस सिस्टम को आपने कैसे बनाया, मतलब खाना पीना ये कोई वो कितना वहाँ कुक कितने वगैरह सब कुछ है। अच्छा। हमारी एक बहन है, वो ये पूरा मैनेज करती है, तो बस वही चलाती है। हमारा तो सिर्फ नाम और मेडिकल की सहूलियात भी देना पड़ती होंगी काफी। हर चीज सब हर चीज़। अच्छा अच्छा, ये हम खुद इंशाल्लाह ताला कोशिश हाँ, करेंगे। मैं आपको दावत देता मैं हूँ, आऊंगी। आप लोग आइए, हम कैमरे के साथ आएंगे कैमरे के आपको। साथ आए। रमज़ान में आते हैं तो रमज़ान में आए, रमज़ान के बाद आए, हम अल्ताफ भाई को भी साथ में बुलाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो बताने वाला नहीं नहीं, है, बस वो देखने वाला है बिल्कुल। कि ये माओ के साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा आज सब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने जो कैंप लगाया, उस कैंप का आगाज़ ही आपने स्पेशल बच्चों से किया, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या वर्ल्ड विमेन करने जा रहा है, क्योंकि आप भी एडवाइस दे रहे हैं, पिछली दफ़ा भी आपने उसके हवाले से गुफ्तगू हुई, हमारी सुजुकी मरगला मोटर की तरफ ही रह गए। तो वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त क्या प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, हेल्थ के हवाले से या इसके हवाले से? हेल्थ का तो जैसे आपने बताया अभी हेल्थ कार्ड ये अब शुरू किया है इन्होंने ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन के साथ मिलके, और ये बहुत अच्छा जा रहा है। और इसमें मतलब पेरेंट्स 2 बच्चे का पहले शुरू में है, उसके बाद जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से वो कार्ड इशू हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है अभी कोई तकरीबन मुझे लग रहा है कि 10,000 के करीब कार्ड जो है ना इशू हो गए दोनों की तरफ से, अच्छा। और बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम दुबई गए थे फंड रेजिंग के लिए, तो अब बहुत से लोगों ने अडॉप्ट किए ये कार्ड कि हम खुद बताएं कितने कार्ड आपको चाहिए, तो आप लोगों को फ्री दें ज़कात अकाउंट में। उसकी यानी लिमिट क्या है, उसके अंदर उस कार्ड की लिमिट क्या है? मेरा ख्याल है 4 लाख के करीब है ना? शुभ बताएं। इसकी लिमिट है 4 लाख रुपया, और जो प्रीमियम जिसे कहेंगे, अच्छा ये शरई कंप्लायंस के साथ है, तकाफुल बाजार के साथ एग्रीमेंट है। 4 लाख रुपया कवरेज है, 3600 रुपया इसकी पेमेंट है, यानी कि आप 3600 रुपये में 4 लाख की कवरेज करेंगे, जिसमें प्रेगनेंसी भी शामिल है। और सबसे अहम बात जो इसके अंदर है, एज फैक्टर 65 तक है। और उमूमन इंश्योरेंस कंपनियां जब वो बच्चों किसी को लेती है अपने चेन के अंदर, तो पुरानी बीमारियों को इंक्लूड नहीं रखते, यहाँ पुरानी बीमारी शामिल है। अच्छा। तीसरा ये है कि सबसे अहम ये है कि हमने नोट किया है कि किसी के घर में अगर बीमारी आती है तो एक फर्द पे आती है ना, तो इनिशियल में 2-3 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो ये एक बंदे पे भी 4 लाख खर्च हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में 4 अफराद हर एक के लिए 1 लाख लिमिट, एक फर्द पे भी 4 लाख खर्च हो सकते हैं। हमने जब इंश्योरेंस की करने के बाद कार्ड इशू हुए, कार्ड इशू होने के 1 महीने बाद ही एक खातून का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, लियाकत नेशनल में एडमिट थी, 4 लाख तो उसमें कवर हो गया, 4 लाख से ऊपर गया, बाकी सारी बातें फैमिली ने दिया, लेकिन वो खातून एक्सपायर्ड भी हो गई। मतलब कहने का मकसद ये है कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकती है, और मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और हमने इस तरह किया है इसको, मेमन फेडरेशन और WMO ने मिलकर कि एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप सिस्टम के तहत आ जाएं तो हम कार्ड बना देते हैं। बहुत सी कंपनियां भी हमारे साथ ज्वाइन हो रही है, तो कंपनियों की वजह से उनको अपने स्टाफ को रजिस्टर कर रहे हैं, तो हर एक को जारी बात है इसका फायदा हासिल है। हमें हॉस्पिटल में जाए इनिशियल पर सिर्फ इनिशियल पर 25-30 हज़ार तो मामूली बात है। अच्छा शुभ, मैंने ये भी सुना कि इमरजेंसी भी उसके अंदर शामिल है मेरा ख्याल। हाँ, इमरजेंसी इसमें शामिल है। अगर इमरजेंसी में कोई लिमिट है, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन अगर वो इमरजेंसी कन्वर्ट हो जाती है हॉस्पिटल में, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट इन पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की सूरत में अगर कोई बीमारी पेशेंट जा रहा है ओपीडी में 2 बार 3 बार गया और डॉक्टर ने आके मैं कहा नहीं भाई अब आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, तो वो ओपीडी इंक्लूड है। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ मेमन के लिए नहीं है,
ये जो हेल्थ कार्ड है ना, नॉट ओनली फॉर मेमन, अच्छा हाँ सबके लिए, क्योंकि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मैं कॉर्पोरेट में लूंगा तो मेरे पास तो हर आदमी काम करते हैं अच्छा ना। मैंने देखा क्या कहते हैं आप लोगों ने भी कोई वो बनाया है जैसे जो भी इससे वर्कर है उनको भी सब हाँ, पूरी कार्ड का स्टाफ कार्ड कहलाता है। स्टाफ कार्ड तो भी कॉर्पोरेट में अगर आप जाओगे तो मेरे पास तो मिक्स स्टाफ होगा ना, तो ये सबके लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा और वर्ल्ड मेमन और क्या ऐसी चीज करने लगा उसका आगे का तो एजुकेशन देखिए अब ये एजुकेशन अहम है। इस वक्त डब्ल्यूएमओ का जो फोकस है ना वो सिर्फ मेन एजुकेशन पर है, और एजुकेशन पे है क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक तो हमारे जहन में ये था, जैसे रजा याकूब मरहूम साहब ने जो शुरू किया था कि कोई भी मेमन का बच्चा जो है ना वो बगैर पढ़ाई के ना रहे, बच रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए आवाज बंद उसके लिए था कि भाई मेमन का बच्चा सड़क पे ना हो कि आवारागर्दी में या वो बगैर पढ़ाई के रह जाए, ये इनका वो था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके आज तक चले। अब ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आ गए और अब इसको लीड कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब, अच्छा माशाल्लाह, और इब्राहिम कासिम साहब, ये दोनों इसको लीड कर रहे हैं। और मेन तो खैर सलमान इकबाल साहब का ही है कि सलमान इकबाल साहब इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने मेहमान बच्चे हैं अच्छा। वो एजुकेशन में आ जाए और क्वालिटी एजुकेशन में आ जाए। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा चेंज नजर आएगा डब्ल्यूएमओ के हवाले से। और दूसरा ये कि एक बोर्ड भी बन गया, मेमन एजुकेशन बोर्ड, अच्छा जैसे माशाल्लाह, आगा खान बोर्ड है ना, जी जी हमारा अपना मेमन एजुकेशन बोर्ड बन गया है। इसको मशियारा फैमिली भी साथ में देकर ही है। अशरफ भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके भाई जो शब्बीर भाई हैं, वो ये लोग सब मिल के, और काफ़ी बड़े जो हमारे वदीक हैं मेमन कम्युनिटी के बुजुर्ग हैं, वो सब इसमें भाग हैं माशाल्लाह। इसमें। और अच्छा प्रोफेशनल मेमन प्रोफेशनल फॉर्म फॉर्म वाले भी आ गए हैं, छापरा साहब भी आ गए हैं, सिटीजन वाले, यानी मुस्तक सब लोग इसमें, वो लोग बहुत बड़ी बात। जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उन सबको ले लिया गया है। और इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसका काम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक बताया हाशिम साहब, आपसे वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सादत हासिल करें इसकी। और एक बात मैं भी करना चाहूँगा जी। क्या होश के हवाले से जो अभी तस्करा हुआ, तो अभी 3 दिन पहले मैंने वहाँ एक महफिल की है। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो भी उस इदारा आप समेत जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा इदारा है। और जो दूसरा आपने इदारे का नाम लिया बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उसी हवाले से मैं शेर पेश जी करूँगा। जी बिल्कुल। कहा ज़ैनब ने नाना वफा करके मैं आई हूँ, तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ, तेरे दी की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। और मेरे सर की जो चादर थी न उतरी थी न उतरेगी, मेरे सर की जो चादर थी न उतरी थी न उतरेगी। क्यों है इसमें खून ज़हरा का, है इसमें खून ज़हरा का, रिदा करके मैं आई हूँ, है इसमें खून ज़हरा का, रिदा करके मैं आई हूँ। कहा ज़ैनब ने नाना वफा करके मैं आई हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। ये कितना 1 घंटे का प्रोग्राम है? 45 बस 15 मिनट। Anif Ramazan is brought to you by Dell Sanitary Wares, Crown Kitchen Appliances, Global
educational free. Javed Publishers. ईमान रमज़ान, और हम ब्रेक पे गए थे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी और फिर इसके बाद हम ब्रेक की तरफ गए। ये जो बुकेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये गुलदस्ता, ये हमने जो है हाजी साहब, हाजी मसूद पारिक साहब को पेश किए ब्रेक के दरमियान के हमने हाजी साहब के लिए, क्योंकि एक छोटा सा तोहफ़ा है फूलों का जो हमेशा याद दिलाता रहेगा। 2 मरतबा तमग़ा इम्तियाज़ जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो इतनी सारी बातें हैं कि मुक़द्दस अवराक के हवाले से, फ़ी सुफ़ा के हवाले से भी। तो ऐसा ये जो तमग़ा इम्तियाज़ मिला तो वो क्या लम्हा था, वो क्या खुशी थी और क्या फ़ख्र महसूस हो रहा था कि आप पाकिस्तान के? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पहली बार मिला था वो दूसरी बार में मज़ा नहीं था। ये तो है। क्योंकि पहली बार तो आदमी होता है क्या होगा, किस तरह होगा, क्या इनाम है। 2009 में मुझे मिला था। अच्छा, इसी हाजियों की खिदमत पर। माशाल्लाह, मेमन खिदमतों के प्लेटफॉर्म जी हाँ। और इस दफ़ा मुझे दिया गया है कि जो कोविड के अंदर पाकिस्तानी जो दुबई में फंस गए थे, 2700 लोगों को हम लेके आए पर्सनल अपने जेब के खर्च से, चार्टर प्लेन करके। 2700 आलमगीर और मेमन खिदमत फोरम ने मिलकर। माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो सुफ़ा आपने बताया है मुक़द्दस औराक, उसके बारे में कुछ बताएं आप। सुफ़ा स्वीट होम हमारा यतीम बच्चों का एक इदारा है। सही। मानसेरा में भी था, इस्लामाबाद में भी था। फिर मानसेरा मेरा पहुंचना नामुमकिन जैसा हो गया था, क्योंकि अब तो खैर मोटरवे बन गया है। उस वक्त तो मैं उतर के जाऊं तो 5-6 घंटे में, और हमारे जैसा आदमी जब पहुंचता है तो उस दिन तो किसी हाल में नहीं होता। तो वो इस्लामाबाद, मैंने दूसरे बच्चे भी इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिए। तो इस्लामाबाद में एक बच्चों का है जिसके अंदर 110 बच्चे हैं, और वहाँ जाके आप देखें, इन बच्चों को पूरा घर का माहौल दिया है। अच्छा। घर का माहौल देने का मतलब ये है कि सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अच्छा। नमाज के बाद इनको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते के बाद इनको स्कूल के कपड़े तैयार मिलेंगे। अच्छा, ये कोई मदरसे में वगैरह में नहीं जाते, नॉर्मल इंटरनेशनल स्कूल है। अच्छा। इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी 6500 रुपये फीस है। अच्छा। फी बच्चा, वो उसमें जाते हैं। वो स्कूल वालों ने बड़ा, उनका जिक्र ना करना बुरी बात है कि उन्होंने 50% हमें माफ़ कर दिया। जब हमने जाके बात की इनसे कि ये ऑर्फन बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, तो अब जाहिर बात है बेच भी बड़ा है, 110 बच्चे हैं, तो उन्होंने आधी फीस हमें कर दी। अच्छा। इसके बाद वो स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके खाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और आराम करेंगे। इसके बाद वो असर के वक्त उठेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे, और असर से मगरिब वो वक्त है कि वो ग्राउंड में जो खेलना चाहे, कोई लूडो खेले, कोई क्रिकेट खेले, कोई फुटबॉल खेले, उसकी मर्जी है। जिसे किताब पढ़नी है किताब पढ़े। मगरिब पढ़ वापस आए, मगरिब पढ़ेंगे। मगरिब के बाद कारी साहब आएंगे जो इनको कलाम पाक पढ़ाएंगे, और एक टीचर आएंगे जो इनका होमवर्क कराएगा, देखेगा। इसके बाद ईसा की नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। रात के 10 बजे तक टीवी ऑन हो सकता है, 10 बजे के बाद टीवी ऑफ हो जाए। सुभान अल्लाह, बस क्या कहे माशाल्लाह, इतनी खिदमत आप कर रहे हैं इंसानियत की। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, ये जो खिदमत के हवाले से अगर मैं आपसे गुफ्तगू करूँ तो वो जो तीनों बंदे हैं, शुएब साहब, आपको भी, आपसे भी ये एक सवाल ले लेते, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज जो हमारे हीरो, और माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने इनको, नहीं हमारे हीरो ये भी हैं, ये भी हैं, मेरे हीरो तो ये हैं। और पूरी टीम वर्क का नतीजा है कि एक टीम होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसको, बस रब को राज़ी करने के लिए। तो वो नींद जो रब आपको सुलाता है, वो कैसी नींद होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की और सुकून, दिल का सुकून ही अलग होगा। तो अब जब क्या कहते हैं अल्ताफ साहब, आप भी जो स्पेशल बच्चों के ऊपर बड़ा काम करे, बकौल आपके कि मैं जब मसूद साहब के ऊपर उसमें जाता हूँ, वहाँ बच्चे देखता हूँ, शुएब साहब के यहाँ पे जाता हूँ, तो वो जो एक दिली सुकून और उन बच्चों को देख के जो है क्या एहसास आता है, क्योंकि एहसास वाली बात ही एहसास से खत्म करते हैं। उसके लिए सिर्फ फीलिंग होती है, फील करता है बंदा, और जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनकी मेहनत को देखता है, उनकी ईमानदारी को देखता है, वो वक्त जो दे रहे हैं। पैसा देना सिर्फ सब कुछ नहीं होता,
पैसे देने वाले बहुत हैं, असल बात है आप ज़ाती वक्त दे रहे हैं, वक्त सबसे और वो बच्चों को ये फील होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, समझे ना। तो ये इसको आप अल्फाजों में नहीं कर सकते, ये जैसे मतलब आसान भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन बच्चों के साथ वक्त लगाना, बाज़ दफ़ा वो बच्चे आपकी बात समझ भी नहीं पाते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। बस अल्लाह इन लोगों को हिम्मत दे जो ये काम कर रहे हैं, और इनकी इस मेहनत को कबूल करें। आपकी टीम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पूछूं कि कैसी टीम है आपके साथ ज्वाइनिंग के हवाले से? अभी मैं जब प्रोग्राम से पहले आपको देख रहा था तो यार सारे के सारे लोग काम में जुड़े हुए, कोई ना कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, बिलखुसूस सलमान साहब की लीडरशिप के हवाले से। अभी जो टीम आई है यंग, वो उसको कैसे देख रहे हैं हम? सर बात पता क्या है, बात ये कि कितनी भी यूथ हो, लेकिन जो बात बड़ों के तजुर्बे की होती है ना, उसका कोई मैच नहीं है। ये अब हम देख रहे हैं ना, यूथ ठीक है अपनी जगह एक फैसला है, लेकिन जो बंदे का तजर्बा होता है और जिन्होंने इतने इतने साल वहाँ दिए हैं कामों के अंदर, और नहीं जैसे हमारा वक्त था जब मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट भी था, बिजनेस सेक्रेटरी भी था, उस जमाने में जो मैं प्रोजेक्ट नए नए लेकर आया, जैसे ये हमने आंखों का लेकर आए थे, स्पेशल बच्चों का लेकर आए थे, कुर्बानी का हम लेकर आए, फिर कोविड में हमने इतना बड़ा काम किया, कोविड में हमने लोगों को घर पे पैसे पहुंचाए, किसी को बुलाया नहीं। और कुर्बानी का भी बहुत बड़ा, अभी कुर्बानी का बहुत बड़ा काम कर मैंने शुरू किया था उस वक्त। कोविड में मेरी टीम के मेन बंदे थे जो शोएब भाई थे, अल्ताफ यानी था, और हमारे टीम में सबसे बड़ा सपोर्ट हमें शोएब इस्माइल मंगोलिया का और गुल भाई का था। अच्छा। तो हमारी और वो अपने फेडरेशन में बकाली के फारूक बकाली, ना फारूक ना, एजाज बकाली करो, एजाज बखला सॉरी आप माफ करना, एजाज बकला ने हमारी बड़ी मदद की। उसने अपने पूरा स्टाफ हमें दिया जो घरों पे लोगों को चेक पहुंचाते थे। अच्छा माशाल्लाह। और हर चेक पे नाम के साथ सहायता कार्ड नंबर लिखा हुआ था, तो उसी को पैसे बैंक से मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, कोई इस तरह की चीज़ जो मेरे वो नाजरीन देख रहे हैं उनके हवाले से कि कैसे इस खिदमत के काम के साथ जुड़ा जाए, क्या ऐसी चीज़ की जाए कि जो पूरे के पूरे लोग आपके साथ मुंसलिक होते चले जाएं? भाई आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दो, ये ना सोचो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। अच्छा, हमारे एक दोस्त कहते थे कि काम करो तो कोई खैर वाला इसमें 10 कौवे आएंगे काले, लेकिन एक भी सफ़ेद आ गया तो आपकी ज़िंदगी बन जाए। क्या बात है, कितनी गहराई की बात की, बहुत आला, कमाल की बात की माशाल्लाह। यही आपने जो पहला जुमला बोला ना कि जितने सीनियर लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनका तजर्बा जो है ना बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो यही सब बहुत कमाल की बात है। शोएब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह आप जितने काम कर रहे हैं वो काम का बदला तो अल्लाह ताला रमज़ान का महीना वो अता करेगा कि जब भी आपको कोई भी काम का टास्क दिया जाता है फ़ौरन उसमें आगे बढ़ के उस काम की तरफ बढ़ते जाते हैं। मैंने तो हाजी साहब वाली बात है, मैं कौवे का जिक्र तो नहीं कर सकता, कोई हाजी साहब कर चुके हैं। बात ये मसला ये है कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था फ्री स्कूलिंग का बल्दिया में, औरंगी और बल्दिया में। पहला हमारा साल का खर्चा 1 लाख रुपया था, आज 2 करोड़ रुपया है माशाल्लाह। इसी तरह हमने WMO के प्रोजेक्ट के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट शुरू किया स्पेशल बच्चों का बल्दिया में। वहां पर कोई सोच के साथ नहीं गए थे, सिर्फ 20 व्हील चेयर देने गए थे। आज 2.5 करोड़ रुपया साल का बजट है स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट का। तो सीखने को ये मिला है कि काम करना है ना तो आप इधर उधर मत देखो, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में देखो, अल्लाह लोग आपको दे देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिल रहे हैं। छोटी मिसाल दे दूं, अभी हमने 2 दिन पहले सोचा कि वहाँ बिजली का मसला है बल्दिया में, तो सोलर पे काम किया जाए। तो अभी हमने सिर्फ सोलर की कोटेशन की, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो 50% बजट तो पाप मिल गया हमें, लोग तैयार हो गए। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब कभी बात करो तो इस बात पे करो कि अल्लाह की जात पर उम्मीद मत रखो, यकीन रखो। अल्लाह के साथ उम्मीद वाली नहीं है, उम्मीद तो ये से नो पे होती तो है। अभी अब जो स्पेशल बच्चे, उस पे कितने स्पेशल बच्चों पे आप लोग काम कर रहे हो, और क्या क्या कर लिया, और क्या क्या मकसद और भी आगे की? देखो, मैं इस वक्त WMO में 250 बच्चे हैं हमारे बल्दिया सेंटर में। बल्दिया सेंटर में जो IHRI और होने के इस्लाम देख रहे हैं 490 बच्चे हैं, माशाल्लाह। और
IHRA में तकरीबन 200 बच्चे हैं, तो अबाउट 2,500 बच्चों को हम लुक आफ्टर करते हैं। माशा तो साहब ये आपका भी इनके साथ मुंसलिक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, हम लोग एक दूसरे का सप्लीमेंट है। अच्छा, आपस के अंदर पहले हमने फंक्शन किया था, वो उसके लिए भी अभी हम करेंगे इंशाल्लाह अच्छा। दोबारा। हाँ, ये फंक्शन का जो आपने किया था अभी थोड़ा सा होल्ड हो गया था। नहीं, अब इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जरूर करेंगे। हाई साहब के साथ मिलके हाई साहब से बात हो गई है। ऐसा तैयार है उस एग्जीबिशन हम हर काम हाजी के लिए साहब तैयार हैं। को ये मैं के तैयार है, हाजी साहब को बोले चलो चलो जी, बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि सबके मिजाज मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और और अल्ताफ भाई से तो समझो भाइयों वाली ताल्लुक है। मैं रमज़ान में किसी प्रोग्राम में नहीं जाता, अच्छा, किसी सूरत में। मुझे 2-4 जानों ने, मेरे करीबी दोस्त ने भी कहा कि जाना है, मैंने कहा नहीं, इसका फ़ोन आया, मैं मजबूर था। क्या मैं रमज़ान में कहीं में आपने नहीं देखा होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारी भी कोशिश थी कि आप जो आ गए और इतने नहीं, लोग जो आपकी- रमजान आपकी में देख रहे, तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला बस दुआ। आपको, आप जो काम कर रहे हो उस हवाले से। तो रिमशा कहाँ तक पहुंची आप? पे और मैं एक टिप शेयर कर दूं अगर टाइम जी, है। बिल्कुल। मैं देसी घी के हवाले से एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो हम दूध गर्म करते हैं रोज और हाई कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से लोग मलाई हटा देते हैं, तो इसे वेस्ट करने के बजाय आप मलाई स्टोर कर दें। देन जब वो एक अच्छी क्वांटिटी में जमा हो जाए आपकी मलाई जो है, देन इसको आप लो फ्लेम पे कुक करें। जब आप लो फ्लेम पे कुक करेंगे ना, तो ऊपर से बिल्कुल सारा देसी घी आपका आ जाएगा। तो बाहर से एक्सपेंसिव लेने से बेहतर है कि आप घर में ही ये चीज कर वेरी सकते हैं। गुड ट्रिप, थैंक यू। ताहिर, आपसे हम आखिर के अंदर कसीदा बुर्द शरीफ की दरख्वास्त करेंगे। और मैं जब इस प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहा हूँ, शेख भाई आपका बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं दे सके। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में फिर आपको ज्वाइन करेंगे और वो स्पेशल खसूसी बच्चों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। भाई साहब, आप रमज़ान के हवाले से हमारे पास आए, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, उस वादे के साथ कि आपके साथ इंशाल्लाह हम अपनी पूरी टीम के साथ, कैमरों के आप साथ आपके आइए, साथ आएंगे। आप जैनब में भी आइए, आगोश में भी आइए, इस्लामाबाद जाएं तो दूसरे इदारों में भी जाइए, ताकि आपको पता चले कि इंशाल्लाह। अल्ताफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मैं आपने सिर्फ हमारे 2 मिनट और जी जी देना जी चाहूँगा, जो आपके तवज्जुह से, आपके चैनल से, कि हमारे मुल्क के जो 4 सुतून हैं, एक जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है और मीडिया है। मेरी रिक्वेस्ट है हम सब कौम के लोगों से, हमारे लोगों से, कि खुदारा ये जो हमारी यूथ जो है वो बहुत नाउमीद हो गई है, ठीक है। और ये यूथ जो है ना, हमारा असासा है, हमारी एसेट है। हमें कुछ ऐसे माहौल बनाना चाहिए अब कि यूथ जो नाउमीद हो गई है ना, उसको कुछ हम उम्मीद दिलाएं, कुछ होप दिलाएं और उसके बारे में सोचें। ये जो 63% हमारी यूथ है, ये कहीं, ये जो असासा एसेट है ना, ये एसेट रहे हमारा, ठीक है ना। ये जो एम्बेसीज के पीछे लाइनें लगा के, कतारें लगा के वीजे के लिए इंतजार बैठे हैं, खुदारा को ऐसा रास्ता करें इनके लिए कोई, कि ये इनको जो ये मोहब्बत करते हैं ना इस मुल्क से, वो कायम रहे। इंशाल्लाह ये मोहब्बतें कायम रहेगी। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो और ताहिर से मैं दरख्वास्त करूँगा, मेरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो हजरात इस वक्त उम्रे की सादत के लिए जा रहे हैं, ताक राते आप जो एहतिकाफ़ के अंदर बैठे, मेरे ये पैगाम को आगे की तरफ पहुँचाए कि जिस तरह अल्ताफ़ साहब कह रहे थे, जो मायूसी की फ़ज़ा, इस मायूसी की फ़ज़ा को इसी तरह कवर किया जा सकता है कि आपकी एहतिकाफ़ की दुआएँ, मदीने में, मक्के में जो दुआएँ हो रही है, उसके अंदर मेरे पाकिस्तान को ना भूले। और जब पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। पाकिस्तान ने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, पहचान दी, और यही पाकिस्तान है जो आपको मुस्तकबिल का बेहतरीन पाकिस्तान नज़र आएगा जब सब मिलजुल के इसके लिए काम करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह, तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और ताहिर हाशमी से मैं कसीदा बुर्द शरीफ की दरख्वास्त करूँगा और मैं चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह, तो फिर मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। हसीनों महाजबीनों नाज़नीयों तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। न कोई आप जैसा था, न कोई आप
آپ جیسا ہے کوئی, یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب.